नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज की सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर एक बार फिर हम एक खास शख्सियत के साथ जुड़े हैं आपको बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी हाँ, आज हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं मिस्टर NN राव जी का, जो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर WRIC मुंबई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हैं WRIC से, मुंबई से, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आप यहाँ पर आए हैं आगरा यूनिवर्सिटी। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम नागेश्वर राव। मेरा होम स्टेट है आंध्र प्रदेश। मेरा एजुकेशन आंध्र प्रदेश में हुआ था। I completed my post graduation in instrumentation and afterwards मेरा जॉब सर्विस दिल्ली में 6 साल किया। उसके बाद दिस वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंट 1997 में ज्वाइन किया था। During my service, I completed my MTech Oh, again. great. So after completion of MTech, I started again this training program activity and given a new direction to this program, so that this is more effective. This program is more effective, and it should give benefits to the education society and by and large to students. So that is our aim and we are continuing this tradition. बहुत अच्छा सर। हमारी यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा ही यानी WRIC के द्वारा ही एक नेशनल वर्कशॉप कंडक्ट कराई जा रही है, जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं उस पर। तो सर, सबसे पहले हम सभी जानना चाहेंगे WRIC बेसिकली है क्या, कब से है और ये किस तरह से काम करती है। वेस्टर्न WRIC यानी वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर नाउ ये अभी नेशनल फैसिलिटी सेंटर इन इंस्ट्रूमेंटेशन 1990 UGC ने इसको रीइन्वेंट करके नेशनल फैसिलिटी सेंटर का रूप में इसको कन्वर्ट किया है। It all started in 1974 when colleges and institutes started using instruments as a measuring tools in colleges and other things. At that time, Government and University Grants Commission assigned a task to BARC Mumbai and TIFR Mumbai to see that how the colleges and universities are utilizing their instruments in their laboratories. So they conducted a survey. After conducting survey, they found that most of the instruments are lying in cupboards. People are afraid of using the instrument, fear of spoiling the instruments. So they found that this survey and then submitted report to UGC in 1977. During that plan period, UGC planned to establish 64 University Science and Instrumentation Center and 4 regional instrumentation center that augment the 64 U6 University Science Center yani U6. So these regional instrumentation centers like RICs established in Western region in collaboration with Mumbai University, and in Southern region SRIC in collaboration with IIC Bangalore. Okay. Later on, due to unknown reasons, Northern and Eastern region instrumentation center never established. And after 10 years of these things came into existence, SRIC merged with IIC Bangalore. Now ours is the only center running and doing this type of instrumentation related activities. Since 1980, we are doing and we are reinventing ourselves every 10 years, and we are rebranding our activities, and we are trying to reach out to the people. Even though we are doing programs all over India, every time new challenges comes and we are trying to do this. Initially we thought that let them have a hands-on experience on instruments during 80s, and later on we started training teachers in 90s. We trained teachers and how to handle these instruments and preventive maintenance and these things. Since 2000
we found that based on our feedback we got from earlier experiences, we found that laboratory assistants and technicians are the important link between students and teachers. Yes. So instruments का मेंटेनेंस, डेली रूटीन मेंटेनेंस जो लैब में रहता है वही कर पाएंगे, ना कि टीचर्स या स्टूडेंट्स. सो हमने 2004 ऑनवर्ड्स हमने लैब असिस्टेंट्स को वी मेड अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग personnel and we made them learning these preventive maintenance and repairing. Since then we got a huge success in this program, and we started these activity in a big way, and hundreds of instruments repaired by themselves. The main theme of this program, whatever we are doing this maintenance program, the main theme is to do the repairing by themselves. बिल्कुल. वो लोग खुद करेंगे तो एहसास होता है ये कितना आसान है, ये काम करना कितना आसान है. ये कोशिश किया हमने, वो कोशिश करने के बाद सक्सेस कर रहा है, जो आप देख रहे हैं अभी. यही मेरा अगला सवाल भी है सर आपसे. हाँ. कि ये जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आजकल चल रही है, जिसमें आप आए हैं, और WRIC मुंबई के सहयोग से ये है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स. तो इस पूरी वर्कशॉप का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ आप इतने दिनों से हैं यहाँ पर, तो क्या आउटकम, क्या आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? हम हमारा उद्देश्य, एजुकेशन इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू ट्रेन द स्टूडेंट्स. एक साइंस सब्जेक्ट कोई भी सिखाता है, साइंस सिखाता है, साइंस जो नॉट ओनली थियरेटिकल एस्पेक्ट्स, यू हैव टू फील दैट whatever science you learn, you have to feel and enjoy that science. Practically you should know how to do this. Science कहाँ से आता है? हम real time experiences से we are gaining these knowledge. So unless you are not going to learn in a real time way, science learning is, you are nowhere going anywhere. So for this purpose what we will do is that we will add real time experiences, like some instruments if you are using, where exactly you are using this instrument. They are using this instrument as an experiment here in the lab, but outside world the applications will be different. Yes. एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो वो सॉइल को टेस्ट करने के लिए यूज़ करता है, सेम एक्सपेरिमेंट. हॉस्पिटल में गए तो वो ब्लड टेस्ट करने के लिए सेम इक्विपमेंट यूज़ करता है. और वाटर में वाटर प्यूरिफिकेशन का टेस्ट करना है तो वो वाटर एनालिसिस के लिए सेम इक्विपमेंट यूज़ करता है. अलग अलग एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में जाएंगे तो केमिकल प्यूरिटी के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है. एक ही इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह यूज़ कर रहा है, बट स्टूडेंट जो सीख रहा है इधर लैब में, वो उसका कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन का जिक्र नहीं होता है. हमारा मकसद यही रहता है, लैब असिस्टेंट टीचर्स को यही बताते हैं, आप जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, थियरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाओ, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके बारे में, सराउंडिंग्स में इसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, जब तक वो मालूम नहीं पड़ेगा स्टूडेंट को सही तरीके समझ में नहीं आता है. यही उद्देश्य से हम ये प्रोग्राम करते हैं. आपका यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हो रहा है, आपका स्टाफ को यही समझा रहा है, हम रियल टाइम एप्लीकेशन पढ़ाना है आपको. उसके लिए हम खुद 10-15 एप्लीकेशन उनको बताते हैं, ये ऐसा करना है. आपका घरेलू एप्लीकेशन, घर में जो यूज़ होता है वो एप्लीकेशन बताएंगे, तो जब घर में पहुंच गए तो सीखना बहुत आसान हो जाता है. घर तक पहुंचेगा, क्योंकि हमने सोचता है घर में जो भी करते हैं आसान रहता है, वही साइंस आपका घर में पहुंच गया, घर तक पहुंच गया और आसान रहता है. मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रही हूँ. जैसे हम घर में माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या हम चिमनी यूज़ कर रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते हैं, उसे हाइजीन करते हैं. तो दिस इज मेंटेनेंस, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. जी. यही बात हम दोहराने की कोशिश करते हैं इधर. और प्रोग्राम में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट जो भी रहता है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेंट सही तरीके से वो सीख रहा है, जहाँ उनको लगता है डाउट आता है वो आके पूछते हैं. जी. यही एम रहता है. वो होने के बाद स्टूडेंट्स को हम यही उनको रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी नॉलेज आप सीखा आप स्टूडेंट को पास ऑन करो, ताकि कोई बच्चा स्टूडेंट रहेगा तो, इफ़ यू इमेजिन आवर ओन चिल्ड्रन कम्स टू दिस यूनिवर्सिटी एंड पढ़ाई करते हैं, इधर पढ़ाई करते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, वही बाकी जो भी इधर स्टूडेंट्स आते हैं
उनका भी ऐसा एजुकेशन हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल यही बिल्कुल। मकसद रहता है। यानी आप इस वर्कशॉप में फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ में, लैब असिस्टेंट्स के साथ में स्टूडेंट्स को भी तैयार कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि WRIC की अपनी एक विंग हर यूनिवर्सिटी में या हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की एक मेंटेनेंस लेबोरेटरी तैयार होनी चाहिए, जो समय समय पर अगर कुछ भी छोटी मोटी ज़रूरत है और मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, वो यहीं के यहीं ये यूनिवर्सिटी में हो बहुत जाए? आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में एक मेंटेनेंस सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये मेंटेनेंस सेंटर होने की वजह से अपना खुद का मेंटेनेंस नीड्स जो रहता है, एक सेंट्रलाइज़ होता है। जी। जब सेंट्रलाइज़ होता है, एक आदमी ज़्यादा प्रशिक्षित होता है उसमें। जब वो होने के बाद पर्पस जो होता है, मीन डाउन टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हुँ, वो कम हो जाता है। हुँ, जब भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, तुरंत आ गया, रिपेयर करके लेके गया, वो अगले प्रैक्टिकल सेशन के लिए रेडी हो जाता है, बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है। हर एक जगह होता है। हमारा कोशिश यही रहता है, हम सबके लिए ये ऑफ़र देते हैं, आपका इसमें से अच्छा लैब असिस्टेंट्स या टेक्नीशियंस या टीचर हो, जो भी है, एडवांस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आए तो हम ज़रूर ट्रेन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों को, सो दैट वो आपको करेंगे, इधर आपका तो करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस रहता है, उसका कॉलेजेस को भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट सभी कॉलेजेस में साइंस एजुकेशन थियोरेटिकल, नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आगे बिल्कुल। बढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक उसे हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं रियलाइज नहीं करते, करते हैं, प्रैक्टिकली यस, रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, तब तक वो, मेरा मानना है, साइंस एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। एग्ज़ाम्स तो रहता है, एग्ज़ाम्स का पास होने के लिए स्टूडेंट्स के लिए टीचर पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस रहेगा, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा। अभी जो भी सिस्टम रहता है, वो सिस्टम इतना सख्त तो नहीं लगता है एग्जामिनेशन के हिसाब से, सो वो पास हो जाता है। बट उसके बाद में सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है, वो रोल डिसाइड करने के लिए टीचर का रोल बहुत अहम रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटी में क्या काम करने वाला है, तो उसके लिए जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल, WRIC बिल्कुल। तैयार है। तो यही हम चाहते हैं आपसे जानना कि क्या अगर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह की मेंटेनेंस लेबोरेटरी हम तैयार करें, रिपेयरिंग लैब हम तैयार करें, तो WRIC का हमें सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, जी, जी। बहुत खुशी रहेगा हमको ये हेल्प करने के लिए। हाँ, ऐसा तो अभी ये जो वर्कशॉप के दौरान क्या आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जज किया, कुछ ऐसे फैकल्टीज़ को जज किया जिन्हें आप चाहते हैं कि आप उन्हें और अच्छे से ट्रेनिंग हमने देकर जज तैयार? किया, हमने ऑलरेडी फीडबैक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को इंटीमेट किया हमने। हुँ, आप उनको ट्रेनिंग दिया, अब भेजेंगे तो हम ट्रेन करके भेजेंगे फेज्ड मैनर में, हुँ, सो दैट 1 साल 2 साल में ट्रेनिंग लेने के बाद आपको यहाँ बेहतर सर्विस देने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर जगह एज ए नेशनल सेंटर हम हर जगह हर बार हम नहीं जा पाएंगे हम, सो हमारी जगह आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करके इधर आप प्रोग्राम्स, छोटा प्रोग्राम नियर बाय कॉलेजेस, विलेजेस में रहेगा, छोटा बिल्कुल। टाउन्स में रहेगा, उनको बुला के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करके उनको ट्रेनिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। उससे हमारा मकसद सर्व होता है, यूजीसी और हमने जो प्रयास कर रहा है इसके लिए, जो 40 साल पहले शुरुआत हुआ था, उसका वो सफल हो जाएगा। जी, और यही ये बहुत हमारा ही उम्मीद है। बेहतरीन है सर। WRIC मुंबई अपनी सारी सुविधाएं मुफ्त मुहैया करा रहा है हमें, और समय-समय पर जितने भी हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, चाहे वो कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे हम घर की बात करें, आम जिंदगी की बात करें, तो वो खरीदते समय वो इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, और अगर वो थोड़ा भी खराब होते हैं तो हम उन्हें डंप कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि हम थोड़ी कम लागत लगाकर, थोड़े कम ही पैसों में अगर उसको दोबारा रिपेयर करें या उसकी मेंटेनेंस रखें, तो ये नौबत ही ना आए ज़्यादा खर्चे की या नया खरीदने की? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो इंस्ट्रूमेंट्स, महंगा इंस्ट्रूमेंट रहता है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रहता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स रहता है। 70 to 80% प्रॉब्लम ऑपरेशनल प्रॉब्लम रहता है। बिकॉज उसमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो फेल सेफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। कोई भी कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम आया तो उसको अपने आप शट डाउन करने का सुविधा के साथ इंस्ट्रूमेंट्स निर्माण करते हैं। अच्छा, सो उसके वजह से वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सुरक्षित रहता है। बट जो यूज़ करने वाला जब उसको
हैंडल करने वाला लोग सुशिक्षित नहीं रहेगा, उनको ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, तभी समस्या उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम में यही कोशिश है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ऑपरेशनल मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस मीन्स हाउ टू ऑपरेट दिस इंस्ट्रूमेंट। आप अगर ऑपरेट करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या करना है, उसको कैसे समाधान करना है, ये सब समस्या प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉर्ट आउट या हमें करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए इमीडिएटली? इमीडिएटली कैसे ऑपरेट करना है, हैंडल बिल्कुल। कैसे करना है कैसे इंस्ट्रूमेंट करना को, है एंड उसको? प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट करना है। बिल्कुल। अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो प्रिवेंट कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर से मैं बताना है तो पावर सप्लाई आता है, हम इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फ्लक्चुएशन जैसा चीज़ आपको दिखता है तो आप फ्लक्चुएशन जब आए तभी आएगा जब आप उसके अंदर मेंस पावर सप्लाई में अर्थिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो आएगा। जब भी आपको फ्लक्चुएशंस आए तो बेसिक ये चीज़ आप देखेंगे, मेरा लैब में जो आ रहा है अर्थिंग बराबर है या नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है या नहीं, ये चेक करेंगे आप, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहता है। यस। आप उसको ऐसा ही छोड़ देंगे फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको इंस्ट्रूमेंट खराब होने का चांस ज़्यादा रहता और तभी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन है। क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। दिस वन। ये चीज़ हम जानकारी देते हैं। इसके वजह से मैंने पहले बताया था 70 से 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। बिल्कुल। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम्स हार्डली 10 to 15% रहता है। वो किसी हालत में प्रोफेसर्स या टीचर्स या लैब असिस्टेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है, बट वो प्रॉब्लम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करेंगे वो 5 से 10 साल के बाद आएगा ऐसा प्रॉब्लम। जी जी, इमीडिएटली नहीं आएगा। इमीडिएटली नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना इंस्ट्रूमेंट 1 साल के अंदर है 6 महीने के अंदर खराब होने के लिए नहीं बनाएगा। नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल। वो कम से कम 5 साल चले ऐसा बनाएगा। मगर वो इंस्ट्रूमेंट 5 साल चलने का इंस्ट्रूमेंट 1 साल या 6 महीने के अंदर खराब हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो सर अभी ये जो वर्कशॉप चल रही है इस दौरान आपने बहुत से यानी लगभग 140-150 के आसपास अभी तक आप रिपेयर कर चुके हैं इक्विपमेंट्स को। किस किस तरह के इक्विपमेंट्स आए सर और कौन कौन से विभाग से आए? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस भी अप्रोच कर रहे हैं और आ रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर रिपेयर कराने के लिए। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स हमको फार्मेसी कॉलेज से मिला हुआ है इधर। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे सर वो? उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वाटर बाथ्स, माइक्रोस्कोप्स, हीटिंग मैंटल्स, मैग्नेटिक स्टरर्स, सेंट्रीफ्यूज, ओवन्स, बीओडी इंक्यूबेटर्स और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस Okay. प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स मिला हुआ है। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स उनका रिपेयर भी हो चुका है। जी। बेसिक एक कोई कॉमन आप इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं कि सर कि कोई एक बेसिक प्रॉब्लम सभी में निकल कर आ रही है? बेसिक प्रॉब्लम एक ही रहता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, Handling मेंटेनेंस of ऑफ the द इंस्ट्रूमेंट, instrument, yes. यही प्रॉब्लम रहता है। जहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है हम उनको बुला के वो समझाते हैं, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रहा है, फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो आपको क्या करना है, उनको लिखने के लिए बोलते हैं अगली बार से करने के लिए। कुछ टीचर्स भी सीरियसली इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल टीचर्स, लैब असिस्टेंट्स भी सीरियसली इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, वो भी सीख रहा है बिल्कुल। अपना सब काम बाजू में रख के, वो लोग भी कर रहा है, काम कर रहा है, सीख रहा है। जी। ये अच्छी बात है, ये मैंने देखा हूँ मैं। नहीं, आपकी टीम भी डेडिकेटेडली बहुत सर लगी बहुत हुई कम जगह नहीं, ये हमारा टीम के लिए ये पैशन है। है। हम जहाँ भी काम करते, जहाँ भी जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, टेक्नीशियंस आए हुए हैं। हम जहाँ भी करते हैं काम, हम ये देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो जो भी किया उनको एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेंट को, आप रिपेयर कर सकते हो, आप करो। उनको ओपन करने के लिए बोलता है, पहले उसके अंदर जो फियर है वो निकल जाएगा इंस्ट्रूमेंट ओपन करने के बाद। फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। जब होने के बाद वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको, दैट वी रियली एंजॉय दैट सेटिस्फैक्शन। सम कॉलेज का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है इधर पिछले 10 साल से 15 साल से बंद पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट्स, और अभी वो चालू है। माइनर प्रॉब्लम की वजह से बंद पड़ा है, अभी वो चालू हो गया वो इंस्ट्रूमेंट। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। उससे जो खुशी और सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है वही बहुत है हमारे लिए। सो हम यहाँ आने के बाद
हम एक ही चीज़ हम भूल जाते हैं इधर आने के बाद। हमारे टीम का ये रहता है, एक चीज़ भूल जाता है टाइम के बारे में। बिकॉज We यू never वर्क look फॉर योर into time. पैशन। We never look into time. क्योंकि टाइम ऐसा चीज़ है, आप उसको बार देखेंगे काम नहीं होगा, काम करेंगे तो टाइम नहीं देखना है बिल्कुल। ये। एंड वी वर्क लाइक ए टीम। यस। यहाँ आप देखेंगे इधर आप नाम से जानते हैं, उनका डिजिग्नेशन से किसी को भी आप पहचानते नहीं। हमारा टीम में खाली नाम से जानते हैं, वो कौन है क्या है वो नहीं है, उनका काम से जानते जी। हैं। ऐसा बना के रखा है हमने बहुत system। अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो सर इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स को भी दिए जाने चाहिए और आप लोग देंगे भी, तो सर ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए, उन्हें जॉब भी मिल सकती है। जरूर जी, थोड़ा इसके बारे में सर अगर आप बताएं। हम स्टूडेंट्स के लिए आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया था ये इसके बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जी। उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जोर दे रहा है उसमें। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक उनको साइंस ग्रेजुएट्स को, पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर स्टूडेंट्स को हम स्किल बेस्ड एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने ये साल मुंबई में स्टार्ट किया। उसके लिए हम सिलेबस करिकुलम फ्रेम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया हमने। उधर का कॉलेज भी हमको सपोर्ट कर रहा है। हमने अभी तक 2 लेवल का प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट किया। वाह। एक फिजिक्स का सब्जेक्ट में, 3rd लेवल प्रोग्राम नवंबर में हो रहा है। उसके बाद वी आर गोइंग टू सबमिट टू यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर आवर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूजीसी इज सपोर्टिंग WRIC। UGC is funding it. Our Wow, funding great. agency is our 100% funding UGC. done by University Grants Commission. Now it is encouraging us to do more programs, such programs. बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। और ये स्टूडेंट्स जो आप बता रहे हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहे हैं, आने वाले समय पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये स्किल डेवलप भी हो जाएंगे, ये कहीं Skill जॉब भी कर development सकते program हैं, हमने प्लस अपना identify किया। बिजनेस हमने वो है कर सकते हैं। हमारे सेंटर में, हमारा रीजनल इंस्टीट्यूट सेंटर में हमारे यहाँ अलग अलग स्किल बेस्ड लैबोरेटरीज अवेलेबल है। एक एम्बेडेड सिस्टम लैबोरेटरी, एक मेंटेनेंस लैबोरेटरी, एक प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग लैबोरेटरी एंड एक मैकेनिकल वर्कशॉप। उसमें CNC मशीन्स, मिलिंग एंड लेथ मशीन्स, एडवांस लेटेस्ट मशीन्स एंड ग्लास ब्लोइंग वर्कशॉप। ये सब स्किल बेस्ड डेवलपमेंट कोर्सेस है। इसमें जो कोर्सेस हमारे यहाँ करते हैं स्किल, एडवांस स्किल डेवलपमेंट, सबको उपाधि मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब में हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना के सबमिट करने वाला है। सो दे UGC वांट्स टू मेक इट एज अ नेशनल प्लान। सो दे वांट टू सर्कुलेट ऑल ओवर इंडिया अबाउट दिस प्रोग्राम दिस इज वेरी नाइस सर। सो दैट वी कैन डू फॉर समथिंग। सो मैंने आपको बताया था पहले, टीचर्स को ट्रेन किया, लैब असिस्टेंट को ट्रेन किया। नाउ इन दिस फेज वी आर प्लानिंग टू ट्रेन स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट जॉब्स। हम इसके लिए इन प्लान ट्रेनिंग करके डिप्लोमा स्टूडेंट्स को हम 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं। उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं हम, राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑनवर्ड्स टू फील्ड ट्रेनिंग। 6 महीने के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। देने के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिखाते हैं, तैयार हो जाते हैं। 100% एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत कंपनीज भी बोलता है ऐसा ट्रेनिंग करके हम मिलेगा तो हम ज़्यादा सैलरी देने के लिए भी हम रेडी रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब तो सर जिस तरह की लेबोरेटरीज आपके यहाँ तैयार हो रही हैं, अगर उसका छोटा प्रारूप, उसके छोटे फॉर्म्स, जिस तरह की लेबोरेटरीज मैंने यूनिवर्सिटी में कहा कि बननी चाहिए, तो ये जो लैब्स हैं यहाँ पर भी ये बच्चे जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये बच्चे इस तरह का काम कर सकते हैं? उसमें हम काम कर रहे हैं अभी। मॉडल करिकुलम एक बार बनने के बाद यहाँ का ऑल ओवर इंडिया टीचर्स को उधर इनवाइट करके उनको ट्रेन करेंगे। इन रिटर्न दे विल कम बैक हियर एंड दे विल डू द ट्रेनिंग हियर। ये इंटीग्रेटेड मॉडल, वी आर डेवलपिंग दिस मॉडल। और इस तरह की लैब्स अगर हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ डेवलप कर ले सर, तो नेक मूल्यांकन में भी उनको मदद मिलेगी? बहुत मिलेगा इसमें, बिकॉज नैक के अंदर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये रहता है, स्किल बेस्ड डेवलप ट्रेनिंग फॉर इंटरनल स्टाफ, teachers and technical staff. For every 5 years they should upgrade their knowledge.
ये इसमें नैक का एक बहुत बड़ा बहुत क्राइटेरिया, अच्छी मार्किंग उसका है। फ़ायदा हमारा प्रोग्राम की वजह से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, कॉलेजेस को फ़ायदा मिल रहा है जी इसके वजह से। सो आपका यूनिवर्सिटी को भी अगर नैक के लिए जा रहे हो तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है ये प्रोग्राम से, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि ये स्किल लर्निंग है। कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स रख रहा का कर रहा हूँ करके कोई भी बोलेगा, कोई कॉलेज बोलेगा तो नैक विल गिव मोर वेटेज टू दोज कॉलेजेस हु आर डूइंग देयर इंटरनल मेंटेनेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो ये बहुत प्रोग्राम की वजह से होता है। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी सर आज आपने हमारे साथ शेयर की है। चलते चलते सर हम यही चाहेंगे आपसे जानना कि आप ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आए हैं WRIC से, और आगरा यूनिवर्सिटी आपका आना हुआ और हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में आना हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा लग रहा है ये। दिस इज द वन वे ऑफ गिविंग अवेयरनेस टू दी A big mass. योर बिग मास एंड द मोर, बिकॉज मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम्स के लिए ये जो प्रोग्राम्स हो रहा है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हो रहा है। बिल्कुल कोई हमने पब्लिसिटी करना या मार्केटिंग करना, ये काम हम नहीं करते हैं, बिल्कुल, आप क्योंकि सोशल कॉज की तरह काम कर सोशल, रहे हैं। दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। कोई भी अभी आप ये प्रोग्राम, आपका यहाँ प्रोग्राम जो हो रहा है, कम से कम 30 से 40 लाख वर्थ इक्विपमेंट्स दुरुस्त होके वर्किंग कंडीशन में रहेगा। जो इंस्ट्रूमेंट्स 30-40 लाख रुपए का वर्किंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सिटी सेविंग 30 to 40 lakhs बहुत बड़ी बात है सर। एक वर्थ ऑफ मनी, और 3 से 5 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट दे आर सेविंग। यस ये हर कॉलेज जहाँ भी होता है, ये हमको आनंद होता है इसमें। ये इस टाइप का चीज़ आगे कंटिन्यू करने के लिए हम एंकरेज करते हैं। अगर ट्रेनिंग होता है, वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हम ऑलवेज एंकरेज करते हैं। जो ट्रेनिंग हम जो प्रोग्राम साउथ से ले कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ शिल्लांग तक हमने प्रोग्राम्स किया, जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं सेम इंटेंसिटी के साथ प्रोग्राम करते हैं, जी सेम वे हम कम्युनिकेट करते हैं सब लोगों को। इसलिए ये एक मीडियम है आगरा की आवाज़। ये आगरा की आवाज़, नॉट ओनली आगरा, entire nation should listen to this through your Facebook or whatever social media you are operating. They should know and learn these things and spread the awareness. जो इंस्ट्रूमेंट सेव करता है, पैसा बचाता है, वो पैसा सेव होता है नेशनल। बिल्कुल। यही रीज़न हम UGC को भी यही बात हम बोलते हैं, आप लोग पैसा देते हैं, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा देते हैं, बाद में उसका मेंटेनेंस का कुछ पैसा नहीं दिया तो मेंटेन नहीं होता है, तो आप बार बार इक्विपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, हम आपका पीछे जा रहे हैं, पैसा वेस्ट होता है उससे। इक्विपमेंट रिपेयर कर रहे हैं, हम 30-40 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वाकई में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रहे हैं सर। और आज हमें बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने अपना इतना कीमती समय और इतनी बेहतरीन जानकारी WRIC से संबंधित, और वैसे भी एक छात्र के जीवन में उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षकों को खास तौर से जो साइंस के टीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक के टीचर्स हैं, इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं, उन्हें किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की। इसके लिए हम सर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपने सुना मिस्टर NN राव जी को, जो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर WRIC मुंबई से। सर ने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी कर चुके हैं। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आगरा की आवाज़, और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे इस ऑफिशियल YouTube पेज पर। फिलहाल होगी आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।